Hi everyone. Let's wait for other people to join as well. We'll start in 2 minutes, right? तो नहीं बना सर मुझसे। मैंने कोशिश किया सर लेकिन नहीं बना। किसी से पूछा आपने अपने बैचमेट से, संदीप सर से या मुझसे? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। क्या रीजन है उसका? सर मैं खुद से ही बनाना चाहता था, तो इसलिए मैं किसी का हेल्प नहीं लेना चाहता था। तो अभी तक तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन सर आई एम एश्योर यू नेक्स्ट मतलब जो क्लास है, मतलब कल तक शायद शायद कुछ मैं कर कल पाऊँ। तक शायद नहीं, कल तक पक्का होना चाहिए, नहीं तो आप किसी की हेल्प लेके उसको कंप्लीट करो। सर और ये क्यों लगता है आपको कि जो 5 दिन में नहीं हुआ वो 1 दिन में हो जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा सर है आपको? मुझे नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा है सर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। तो यही तो बात है। अगर इतना टाइम, प्रियम, इतना टाइम एक प्रॉब्लम पे नहीं देना होता है। दिस इज इन जनरल फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर प्रियम। कि अगर इतना टाइम आपको लग रहा है तो आस्क फॉर हेल्प फर्स्ट फ्रॉम योर बैचमेट्स, सेकंड फ्रॉम मी और संदीप सर, एनीवन, ठीक है? तो इतना टाइम अगर आपको लग रहा है तो यू शुड नॉट गिव लाइक 5 days ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम। दैट इज नॉट द आइडियल वे टू डू इट, है ना? तो प्रियम, ये कल ओके तक सर। कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बाकी लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग भी बचे हैं, फोक्स, व्हाट इज द रीजन? आप लोग क्यों नहीं करके आए हो? मतलब इफ आई एम प्रोवाइडिंग, लाइक अगर मैं क्लास में मेहनत कर रहा हूँ, गिविंग यू होमवर्क, आई एक्सपेक्ट दैट यू पीपल डू इट, राइट? इफ यू पीपल आर नॉट डूइंग इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, फोक्स। If you people are not doing it on time, I mean, that doesn't give me the motivation, right? मुझे motivation नहीं मिलता है to teach it, right? So this is something which is unexpected. Balram, Ishu, Manoj, Mantasha, Nadeem, Pranita, I'm seeing you for the first time in the class. Prashant, Priyam has already spoken about it. Salman, Faizan, Sneha, and Umashi. Please send me in personal chat written reasons for whatever reason, because एक ही question था और वो अगर आप 5 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, it's a problem, right? So I need written reasons in my personal chat, please, right now. And next time अगर इसमें से एक भी नाम repeat हुआ, believe me on this, I will be talking to Digital about this. This is not going to work like this, right? मतलब आपको मैंने एक प्रोग्राम दिया था 5 दिन में करने के लिए, आप लोगों से एक प्रोग्राम नहीं हुआ, और उसके ही बहुत ही सिमिलर प्रोग्राम मैंने क्लास में करके ऑलरेडी दिखाया था। सो आई डोंट नो कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए था अपने बैचमेट से सबसे पहले। मैंने पहले भी बोला था ये वीक मेरा थोड़ा बिजी है रिलेटिवली, राइट? तो और नहीं था तो मेरे पास पर्सनल चैट में भी तो किसी ने नहीं पूछा है। Pranita, that's fine. Isneha, don't give me the reason कि by when you'll be able to complete it. Give me the reason why were you not able to do it in the last 5 days. And this is for everyone. अब इस तरह से मेरा क्लास में टाइम वेस्ट होता है, फिर बताइए आपका सिलेबस पीछे होगा, who will be responsible? या तो आप मुझे आपकी क्लास, Sir, I was stuck in the traffic, that's why. first of all let's see कि what are arrays. Please keep your hands down. What are arrays? ठीक है, let's see that. So array first of all, Sir, yes, yes. you didn't tell me what was you asking everyone. Leave it, leave it. I didn't start a new topic. I'm starting a new topic right now. Oh, okay, sir. So yeah, coming to arrays, array is a data structure. See, ठीक है, array is first of all a data structure. It's not a data type. It's not a type. It's a data structure which is used to hold various kinds of values. So for example, आपने देखा होगा in real time also. I mean in real life also, you will have things like list of something, right? For example, a list of fruits, a list of items which you need to purchase from the market, or any different things, right? It can be a list of maybe prime numbers up to 100. It can be a list of odd numbers up to 100, anything, right? So if you have to store such kind of values in a form of list, okay, so in Python we directly call it list, but in JavaScript we have arrays, right? And how they are declared? They are declared like this: var. Again, any variable is declared with the use of word var only. Var, let's say it's a list of odd numbers. Var odd number list, right? Odd number list is equals to, and then you provide the Sir, brace. your screen is not shared, not shared. Okay, so we will do it var odd number equal to, and then a list of braces. Sorry, then a pair of braces. And inside that, using comma separated, you can provide any number of values. So for example, let's say this is a list of odd numbers less than 10. So what will be there? 1, 3, 5, 7, and 9. Okay. Similarly, let's store the name of the students uh, who are in the class, in a class. I mean, not talking about this class, but in any class. So for var students in a class, students in a class equals to, right? How will we name it? Let's take 3 students. Okay, one is me, another is any random name, let's Alex, and then another any random name, let's say, I mean, it can be any name, let's say name only, right? So it's a list of names. Now, talking about JavaScript, as I told you already, कि JavaScript is a weakly typed language, and you will see one more facet to it. यहाँ पे आप इसका एक और facet देखेंगे. So
What is that? इसमें it is not necessary that in an array you store the same types of elements. For example, this contains all numbers. This contains all strings. You can also store a mix of both the types. For example, var mixed. Just giving an example. This is also very valid. For example, let's take here apple. 12 false undefined. Right? So everything is a different type. Everything is a different type. It can be. So you can store, I mean, different kinds of data structures, sorry, data types as well, or types as well in an array. That is also a perfectly valid case. Okay. While this is not available in strictly typed languages like Java, C++, etc. वहां पे हर एक array का भी type होता है कि whether an array is going to hold a number type of values, whether an array is going to hold a string type of values, but in JavaScript this is not a restriction. Are we clear upon this? So an array is nothing. An array is a list of items which can be stored together. ठीक है? Got it. Now, how do we refer these values? The question is in values को हम refer कैसे करते हैं? Similar to string, यहाँ पे भी होती है indexing, right? Similar to string, we have the indexing concept available here as well. Now, what is that concept? So, what if someone asks you how to access the word Alex here? So, index again, similar to strings, it is also accessible using the string zero. Sorry, index zero. It starts from the index zero. So, this is index zero, this is index one, this is index two. So, what I'll do here is console.log students in a class. Let's say I want to access the first index. Okay, so I'll ask you. Okay, let's ask Manash, can you tell me what will be the result of this? Hello, sir. Sir, Alex. Correct, right? So if I run this, the result is Alex, right? Okay, let me ask one more person. Okay, Shashank, can you tell me what will be the result of this? Undefined. Correct. The result will be undefined. So basically, the name of the variable followed by the index inside the braces. जैसे यहाँ पे it is written as 3 mixed 3. So what it will do, it will refer to the variable as variable mixed and उस पे 0 1 2 3. So the result will be undefined. If I give it 2, the result will be false. ठीक है? अच्छा. What will be the length of odd number list? ठीक है, let's ask this to Sahil. Sahil is there in the class. Sahil बताइए, what will be the length of odd number list? 5. Sorry, 5, correct. So you can, similar to string, you can access the length of an array using the length function. हमने length property discuss की थी ना? We have the length property here as well. So using the length property, you can access the length of the array. For example, so you get 5. So how many number of elements are there? 5, right? Correct. And similar to string, आप इस पे loop भी कर ही सकते हैं, right? Yes. Any questions, anyone? इसका टाइप ऑफ क्या बताएगा? Type of, interesting. इसका type of होता है object. ठीक है, आप कोई भी अगर वो ले लो, इट इज आइडियली ऑब्जेक्ट, बट लेट्स सी टाइप ऑफ क्या बताता है. इट कैन गिव यू एरे एज वेल, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो बेसिकली एनीथिंग, इस पे मैं आऊंगा बाद में जब मैं आपको प्रोटोटाइप पढ़ाऊंगा. बट फोक्स, टिल देन रिमेंबर, इट वाज अ गुड क्वेश्चन. टिल देन रिमेंबर एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट ही होती है एट द एंड. और ये मैं आपको प्रूव करूंगा वंस वी गेट इनटू इनहेरिटेंस एंड प्रोटोटाइप्स. ठीक है, जब हम इनहेरिटेंस और प्रोटोटाइपिंग पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको प्रूव करूंगा कि जावास्क्रिप्ट में क्यों हर चीज एक ऑब्जेक्ट ही होती है. ठीक है, till then remember type of an array is also object, right? Array का type भी एक object ही है, right? But this is an array, right? All right, so let's say I give you a program. For example, write a program in JavaScript to store all the odd numbers till 10. तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, या till any given number n. तो कोई given number है n, अभी मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, let's say 35, and it's given to store all the odd numbers till the given value of n. N can be 35, 36, anything. चलो n 100 ले लेते हैं for now. And I'm going to store all the odd numbers, right? तो देखिए मैं कैसे करूंगा. First of all, I'll run a loop for integer, sorry, Java वाली आदत पड़ी है. For variable I equals to 1, ठीक है. I is less than equal to n and I plus plus, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. And then what we will do, we will check. How will we check if the number is odd or not? कैसे check करते हैं बताइए. If I modulo 2 should be equal to 0 or not equal to 0? Not equal. Not equal to. Not equal 0. Number is odd. Not तो हमें equal क्या to. करना है? We need to add it in the array, right? And how do we add an element in the array? So we will use the push function. Push. So देखिए push function क्या करता है? Push function adds an element to the array. ठीक है? तो I'll explain to you in more detail. अब देखिए इसमें होगा क्या, and then I'll print that.
ठीक है, अभी प्रिंट करूं इसको. We have 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 till 99 because 99 is the last odd number before 100 या till 100, है ना. अब होता क्या है, देखिए, how does push work? It's very important to understand how does the work function push work. होता क्या है इस केस में? इस केस में बहुत ही easy है, कुछ है नहीं. पुश देखिए कैसे काम करता है. सबसे पहले 1 आया, 1 के लिए द कंडीशन विल बी 2, 1 mod 2 is not equal to 0. yes, the condition is true. array dot push I, array इनिशियली क्या है, empty है ना. इनिशियली array क्या है, empty है. array dot push I का मतलब है इसमें लास्ट में 1 जोड़ दो. अब अभी कुछ है ही नहीं, तो इट विल सिंपली ऐड 1 हियर. देन गया ये 2 हुआ, I प्लस प्लस मतलब I becomes 2, राइट. I becomes 2, है ना. अब 2 के लिए दिस कंडीशन विल फेल हो जाएगी बिकॉज 2 mod 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर से I प्लस प्लस होगा, I की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन ट्रू. array डॉट पुश I ये क्या करेगा, जितना प्रेजेंट है उसके आगे उसको ऐड करता चला जाएगा, राइट. उसके आगे इट विल कीप ऑन अपेंडिंग. सिमिलरली 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 एंड सो ऑन टिल 99, जो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, राइट. सो दिस इज द वे ऑन हाउ यू डू इट. इस तरह से आप इसको कर सकते हो. आई बात समझ में है सबको? Yes, sir. हाँ जी. चलिए, अब बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू गिव यू अ प्रोग्राम जो बहुत टाइम से पेंडिंग था विद स्ट्रिंग्स. ठीक है, मैं काम करता हूँ खुद ही समझा. चलिए, ये वाला प्रोग्राम मैं खुद ही कराता हूँ आपको बिकॉज इट्स अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम. It's not complex, but it's slightly complex at the beginning level. So you can write a program in JavaScript to check if a string is anagram, if two strings are anagram or not. If two strings are anagram. इसमें बहुत सारे concepts लगेंगे, so please pay attention. ठीक है, दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम कब होती हैं? दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम तब होती हैं जब उसके लेटर्स को उठा के आप कोई दूसरे वर्ड का भी फॉर्मेशन कर सको. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मुझे इंटरनेट से उठाना पड़ेगा एनाग्राम का एग्जांपल, ऐसे याद नहीं रहता कौन कौन सी दो स्ट्रिंग एनाग्राम है. ठीक है, सो द वर्ड इज लेट्स से बोर्ड एंड अनदर वर्ड इज रॉब्ड. ध्यान से देखिए, बोर्ड और रॉब, यानी कि अगर मैं बोर्ड के लेटर्स को, इफ आई जंबल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बोर्ड, क्या मुझे रॉब्ड मिल जाएगा? करेक्ट. देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, Yes, sir. राइट. चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. NIGHT नाइट एंड THING थिंग. नाइट के वर्ड्स को, लेटर्स को अगर मैं जंबल कर दूं तो क्या मुझे थिंग मिल जाएगा? यस सर. यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि आपको दो स्ट्रिंग्स इनपुट होंगी, वो दो स्ट्रिंग्स कुछ भी हो सकती है, राइट. लेट्स कॉल देम एज str1 एंड str2 या s1 s2 सिंपल. ठीक है, वर s1 इक्वल्स टू समथिंग. ठीक है, अभी के लिए लेट्स टेक नाइट मे बी. ठीक है, एंड s2 इक्वल टू समथिंग, लेट्स से कार. क्लियरली दे आर नॉट एनाग्राम्स बिकॉज अगर आप नाइट के वर्ड्स को जंबल करेंगे तो आपको कार नहीं मिलेगा, है ना. तो हमें चेक करना है कि क्या दो गिवन स्ट्रिंग्स एनाग्राम हैं या नहीं है, यानी कि वेदर एक के लेटर्स को अगर मैं जंबल कर दूं, ठीक है, तो दूसरा मिलेगा या नहीं. गिवन कंडीशन है, ऐसे जरूरी भी नहीं है पर ठीक है. चलिए बिना कंडीशन के ही बताता हूं आपको. ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी तक मैंने हैव आई टोल्ड यू द कांसेप्ट ऑफ ASCII कैरेक्टर्स बताया है मैंने कि नहीं बताया अभी तक? नहीं बता सर. दिया ना? बताया है ना, ASCII तो बताया था ना. स्पेस 32 होता है, कैपिटल लेटर 65 to 90 समथिंग होते हैं, 91 92 या 90 पता नहीं याद. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, बताया 97 हाँ, to बताया सर, बताया सर, बताया American बताया. code करके कुछ था. हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, उसी का यूज करेंगे इसमें. देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, मतलब हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. तो देखिए, एक वर्ड को जंबल करके दूसरे वर्ड में बदलना, क्या ये कहना सही होगा? इसी क्वेश्चन को लेट मी रीफ्रेम इट. व्हाट आर एनाग्राम्स? एनाग्राम आर टू वर्ड्स जिनके अगर आपको वर्ड्स जंबल कर दिए जाएं तो आप दूसरे वर्ड को बना पाओ, राइट. बोर्ड बिकम्स रॉब्ड, नाइट बिकम्स थिंग. एक और एग्जांपल दूं तो आर्क, द वर्ड आर्क बिकम्स कार, है ना. तो दीज आर एनाग्राम्स टू ईच अदर, है ना. तो इनके लेटर्स को अगर जंबल कर दिया जाए तो ये दूसरे वर्ड में बदल जाएंगे, राइट. हाउ डू वी चेक दैट? थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर दो वर्ड्स एनाग्राम हैं तो उसमें हर एक लेटर उतनी ही बार आएगा जितना इसमें आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं आर्क और कार का. आर्क में ए कितनी बार है? एक बार है. आर कितनी बार है? एक बार है. और सी कितनी बार है? एक बार है. कार को, इन ऑर्डर फॉर कार टू बिकम एन एनाग्राम ऑफ द वर्ड आर्क, ठीक है, कार को इसका एनाग्राम बनने के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं उसमें भी एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स होने चाहिए और उतनी ही बार आने चाहिए? कैन आई से दिस? Yes, sir. यस सर. है ना. सिमिलरली नोटिस इट फॉर बोर्ड कि अगर इसमें एक बी है तो इसमें भी एक ही बी होना चाहिए. अगर एक भी बी एक्स्ट्रा आ गया, फॉर एग्जांपल दिस,
दे आर नॉट एनाग्राम्स, ये एनाग्राम्स नहीं रह जाएंगे, राइट? तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो वो एनाग्राम्स हैं। कैन आई से दिस? है ना? यस सर। तो यही चेक करना है हमको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चेक क्या मैं ये लगा लूं कि अगर इन दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है आपस में, है ना, अगर इनकी लेंथ सर। ही इक्वल नहीं है तो ये कभी एनाग्राम हो ही नहीं सकते हैं, है ना? कर सकता हूं ये? यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। दे आर नॉट एनाग्राम, है ना? सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। इस इफ s1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट लेंथ तो पक्का ही है कि एनाग्राम हो ही नहीं सकते। पर एल्स, यानी कि अगर लेंथ इक्वल है तो अब हमें फ्रीक्वेंसी का चेक लगाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का चेक मतलब हमें दोनों ही उसमें काउंट करना पड़ेगा, हमें दोनों ही उसमें काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा? कि हमें दोनों उसमें ये काउंट करना पड़ेगा कि हर एक कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है ना? ये काउंटिंग करनी पड़ेगी हमको। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि एस्काई में कितने कैरेक्टर्स होते हैं टोटल? एस्काई कैरेक्टर्स में 256 256 है ना? 256 की टेबल दिखाई थी मैंने आपको, अगर याद नहीं है आपको तो मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है। एस्काई से ज्यादा कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं बट स्टैंडर्ड है 256 का। ये टेबल इज नॉट वेल फॉर्म्ड, जहां पूरी टेबल है वो वाली दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी टेबल है एंड इट गोज अप टू 255 बट स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है और 255 तक जाती है, मतलब 0 to 255 which is 256। 1 से स्टार्ट होती तो 255 होता, बट सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इट इज 256, है ना? तो 256 कैरेक्टर्स हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और कहां तक जाते हैं? 255 तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं, ठीक है। मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, जिसमें मैं 255 कैरेक्टर्स इंक्लूड करूंगा, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, ठीक है, यहां देखिए एल्स के अंदर मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूं काउंट 1। काउंट 1 क्या करेगा? ये एरे क्या करेगा? बेसिकली व्हाट दिस एरे विल डू, दिस इज सिंपल, कुछ नहीं करने वाला है ये, इट्स अ वेरी सिंपल एरे, ठीक है। ये आपका क्या करेगा? ये हर एक 255 कैरेक्टर्स के लिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th 1, यहाँ पे देखिए 0 क्या है, 0 जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इज 0, दिस इज नल कैरेक्टर, ठीक है। 0 से लेके 255 तक हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेगा कि हर एक कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा एरे चाहिए जो 256 नंबर्स होल्ड कर सके, राइट? बिकॉज हम क्या चेक करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि भाई जो 0 पे है विच इज द नल कैरेक्टर, ये कितनी बार आया पहली स्ट्रिंग में, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे ये कितनी बार आया दूसरी स्ट्रिंग में, है ना? और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सिंपल, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आर्क और कार लीजिए, अभी 256 और सब भूल जाइए। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं काउंट करूंगा ए कितनी बार आया आर्क में, एक बार आया, ठीक है। बी कितनी बार आया आर्क में? 0 बार आया। सी कितनी बार आया आर्क में? 1 टाइम। डी कितनी बार आया? 0 टाइम्स, राइट? मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, सिंपल, है ना? आई एम ट्राइंग टू डू दिस, लाइक मैं बस यही करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं, है ना? ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, डी कितनी बार आया, एकदम सिंपल मैं ये करने जा रहा हूँ टिल जेड, ठीक है। बीच में कहीं आर आएगा एक बार और जेड आएगा 0 बार, बिकॉज जेड है ही नहीं। सिमिलर थिंग आई डू फॉर कार, सेम चीज मैं कार के लिए करूंगा, ठीक है। कार के लिए भी मैं यही चीज डेटा अपने पास स्टोर करा लूंगा और फिर मैं कंपेयर कर लूंगा कि अगर ए इसमें 1 है तो ए कार में भी 1 होना चाहिए, बी अगर इसमें 0 है तो कार में भी 0 होने चाहिए, राइट? आई विल मेक दिस कंपैरिजन, और अगर लास्ट तक मुझे सब सेम मिला तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी जगह वेरिएशन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे जी होता, जस्ट इमेजिनेशन दे रहा हूँ 2, और कार में और दूसरे वर्ड में मान लीजिए जी आ गया 1 या 0 या 3, मतलब एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 2, ठीक है, तो वी विल से कि दीज कैन नॉट बी एनाग्राम्स, बिकॉज मैंने क्या बोला, एनाग्राम्स क्या है कि जिसमें हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना? अच्छा, बट अभी हम इसे लेटर्स तक क्यों नहीं लिमिटेड रख रहे हैं? बिकॉज आपके प्रोग्राम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वर्ड में सिर्फ लेटर्स होंगे या स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर होंगे। स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कॉमा, एट द रेट, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए हम पूरी की पूरी एस का लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कितना बड़ा एरे लगेगा ये बताइए, हाउ बिग एरे विल आई रिक्वायर? उसके लेंथ तक सर? नहीं, लेंथ तक तो नहीं लगेगा, लेंथ तक कैसे, लेंथ से तो काम नहीं चलेगा। मतलब उसकी कोड पे चेक करने हाँ करेक्ट। तो पेपर
सही 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 सोच रहे हैं। 250 क्या है सर बोले? 256 56 right? 255 का 256 बेसिकली, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है ना 255 तक, तो 256 ठीक है। 255 लेंथ का हमें एरे चाहिए, तो या तो हम इसको ऐसे करें, फिर एक फॉर का लूप चलाएं, ठीक है। यानी सिंपल एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हमने काउंट 1 लिया, और काउंट 1 मेरा S1 के काउंट करेगा, और एक और ले लेते हैं काउंट 2, ठीक है। काउंट 2 किसके लिए हो जाएगा? S2 के लिए हो जाएगा। सेम 2 के लिए। देन आई कैन रन अ लूप, बिकॉज अभी इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है। एक लूप रन करते हैं और इनिशियली सारों को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो var i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 256, है ना, एंड i प्लस प्लस, और क्या करेंगे, काउंट 1 i इक्वल टू 0 कर देंगे, बिकॉज इनिशियली हमें नहीं पता कि क्या फ्रिक्वेंसी है। काउंट 2 i को 0 कर देंगे, है ना। गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सबको ये चीज, है ना। और उसके बाद हम काउंट करेंगे, बट मेरे पास इससे एक बेहतर तरीका, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस स्टेप में। हम सिंपली इसके अंदर 256 जीरोस भर रहे हैं, इसके अंदर 256 जीरोस भर रहे हैं, विच इज नथिंग बट द इनिशियल काउंट, है ना, विच इज नथिंग बट द इनिशियल काउंट। तो इससे अच्छा मेरे पास होता है एक मेथड, ठीक है, जो इनिशियली एरेज में, लेट मी चेक ये जावा स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जावा में तो करता है, ठीक है। अभी मुझे जावा की चीजें ज्यादा याद आ रही हैं। हाँ जी सर, पहले सिंपल वाला चलाते हैं, इसके बाद शॉर्टकट वाला दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, वैसा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले सिंपल वाला ही रखते हैं जो मैंने लूप अभी लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली 256 जीरोस भर दिए हैं दोनों में। काउंट 1 में भी दे रहा 256 जीरोस, एंड काउंट 2 में भी दे रहा 256 जीरोस, एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए हर एक लेटर की, हर एक लेटर की मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई विल स्टार्ट रनिंग अ लूप ऑन S1 एंड S2। मैं S1 और S2 पे लूप रन करूंगा। तो फॉर, अब दोनों की लेंथ तो बराबर ही है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी की भी लेंथ तक चला लूं लूप। फॉर वेरिएबल i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन S1 डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, किसी की भी लेंथ तक आप चला सकते हैं, बिकॉज अगर लेंथ इक्वल नहीं है तब तो वो एनाग्राम हो ही नहीं सकते हैं, राइट। तब तो वो एनाग्राम हो ही नहीं सकते हैं, ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कौन सा कैरेक्टर है एट एवरी पोजीशन पर। क्या हमें कैरेक्टर से मतलब है? नहीं। क्या हमें n से मतलब है? एक्चुअली नहीं, हमें n से मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है n के करस्पॉन्डिंग उसकी एसकाई वैल्यू क्या है, यानी n की एसकाई वैल्यू क्या है, राइट। तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक आपको मैंने ये सिखाया है, S1 डॉट, S1 ही नाम था ना, S1, सॉरी इट्स नॉट कैर इट्स वॉर, मुझे जावा वाली चीजें याद रहती रहती हैं, सो सॉरी, ठीक है। ये क्या देगा आपको इनिशियली, जब 0th इंडेक्स होगी तो S1 के लिए n दे देगा एंड S2 के लिए c दे देगा, राइट। फिलहाल तो यहाँ कंडीशन आएगी ही नहीं, इसको थिंक कर देता हूँ मैं, बिकॉज ये यहीं पे एंड हो जाएगी क्योंकि लेंथ इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए n दे देगा, इसके लिए t दे देगा, राइट, है ना। बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो इसकी एस्काई वैल्यू चाहिए। और जब आपको एस्काई वैल्यू चाहिए तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैर एट यू विल यूज कैर कोड एट। तो कैर कोड एट क्या करता है, वो आपको उसकी एस्काई वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। व्हाट इट रिटर्न्स यू द एस्काई वैल्यू, ठीक है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे CH मिला। CH क्या है, CH इज द एस्काई वैल्यू। जैसे n की, स्मॉल n की एस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल n की एस्काई वैल्यू इट शुड बी समवेयर अराउंड 97 टू 122 है ना, 97, 110 111 होगा, देख लेते हैं एक बार, इसी टेबल में देख लेते हैं। 110 है ना, स्मॉल n की इज 110, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे देगा, इट विल गिव मी 110। तो मुझे करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, इसकी मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करा लेनी है। तो काउंट 1 एट CH, काउंट 1 एट CH प्लस प्लस, मतलब यहां पे मैंने क्या किया, अच्छा काउंट 1 इनिशियली क्या है बताइए आप लोग मुझे, काउंट 1 इनिशियली क्या है, 256 जीरोस है ना। और यहां मैंने क्या किया, CH प्लस प्लस, ठीक है। का मतलब क्या हुआ कि काउंट वन, चलिए इसको थोड़ा सिंपल लग देता हूं वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। अच्छा n की वैल्यू, ये CH की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा मुझे, अभी अभी हमने चेक करी थी, n के लिए CH की वैल्यू क्या है, 110 सर। 110 110, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, काउंट 1 110, काउंट 1 110 क्या है, यहाँ पे हमने सब जीरो कर रखे हैं ना, तो काउंट 1 110 क्या होगा, जीरो होगा इनिशियली, है ना। और काउंट वन 110 विच इज 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, टोटल 1। तो बेसिकली हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ इस स्टेप पे। इस स्टेप में जो आपकी 110th इंडेक्स होगी, 110th जो इंडेक्स होगी उस पे इंस्टेड ऑफ 0 अब वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज ऑफ दिस प्लस 1। आ रही है बात समझ में, Yes, sir. यस सर। है ना।
सिमिलरली वी विल डू इट फॉर S2 ऑल्सो। हेलो ठीक है, हाँ जी, हेलो हाँ निहार बोलिए। हैं निहार, यू आर नॉट ऑडिबल। चलो बाद में देखते हैं। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर S2 ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे बस हो जाएगा S2। अब ये CH है तो इसको CH1 कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी आप कर दो, मतलब तो ये S1 है तो इसको CH1 कर देते हैं, और ये S2 है तो इसको CH2 कर देते हैं। राइट, मीनिंगफुल वेरिएबल्स ले लेते हैं थोड़ा। सो वी विल मेक इट CH1 एंड इसको भी CH1 हो जाएगा ये भी। ठीक है, एंड द सेम थिंग विल हैपन फॉर CH2 ऑल्सो। काउंट 1, बट अब काउंट 1 की जगह काउंट 2, CH2 इज इक्वल्स टू काउंट 2 CH2 प्लस 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है A इक्वल टू A+1, ठीक है, चाहे ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, ये दोनों सेम ही बात तो है ना, एक ही बात है ना। यस तो सर, यस सर, इसी की जगह यस पे सर। कैन आई राइट दिस, इसी की जगह पे कैन आई राइट दिस, ये पूरा हटाता हूँ यहाँ प्लस प्लस, है ना, क्यों लिखने इतने लंबे स्टेटमेंट्स, है ना, खत्म। अब मेरे पास देखिए होगा क्या। सबसे पहले आया नाइट का n का क्या है, 110 है, 110। ठीक है, तो ये क्या करेगा, काउंट 1 में 110 को क्या कर देगा, प्लस प्लस, मतलब 110th इंडेक्स पे ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आया टी का कितना है, एक बार देख लेते हैं, लेट्स चेक कि टी का कितना है। टी स्टैंड्स एट 116, तो ये क्या करेगा, काउंट 2 में 116वीं इंडेक्स पे इट विल डू प्लस प्लस, यानी 116 पे हो जाएगा 1। ठीक है, 116 पे हो जाएगा ना 1। फिर क्या आएगा यहाँ पे, अगला आया हमारा i। ठीक है, जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे भाई, इसके बाद i इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हुई 1, तो यहाँ पे मिला i का कितना है देखिए, i का है 105। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट 1 में 105th इंडेक्स पे हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और इसी तरह से प्रोसेस रिपीट होके पूरा ये पूरा हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चेक करना है काउंट 1 और काउंट 2 की हर एक इंडेक्स पे, काउंट 1 और काउंट 2 की हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। सेम होनी चाहिए सर, बिल्कुल। इट शुड बी सेम, right, because if it is not same, if it is not same, then they are not anagrams. So what we will do here is, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे फॉर वेरिएबल i इक्वल टू 0, और कहाँ तक रन करेंगे, कितना बड़ा एरे है मेरा, 256 तक का है ना, i इज लेस देन 256 एंड i प्लस प्लस। और हम चेक कर लेंगे कि इफ काउंट 1 एट i इज नॉट इक्वल टू, यानी किसी भी मोमेंट पे अगर ऐसा मोमेंट आ गया ये दोनों इक्वल नहीं है, वी विल से दे आर नॉट एनाग्राम्स। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दे आर एनाग्राम्स, राइट। बट अब पता कैसे चलेगा कि कंडीशन ट्रू हुई या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ जो इनिशियली है ट्रू। ट्रू मतलब इट इज सेइंग कि दे आर एनाग्राम्स। और अगर यहाँ पे कभी भी आया, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फ्लैग को कर देंगे हम फॉल्स। फॉल्स मतलब दे आर नॉट एनाग्राम्स। और क्या मैं यहीं पे ब्रेक कर सकता हूँ, क्या मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर एक भी मिसमैच हो गया तो दे आर नॉट एनाग्राम्स, तो आगे चेक ही क्यों करना है, यहीं पे लूप को ब्रेक कर दो, है ना, और फ्लैग मेरा रह जाएगा फॉल्स। तो एक बार जब ये लूप खत्म होगा हम चेक करवा लेंगे यहाँ पे कि इफ फ्लैग का मतलब क्या हुआ, कि अगर फ्लैग अभी भी ट्रू है, चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, सेम ही बात है ना, है ना, बिकॉज फ्लैग में तो ट्रू फॉल्स ही है, और इफ के अंदर तो हम ट्रू फॉल्स ही लिखते हैं ना। तो इफ फ्लैग का मतलब क्या हुआ, इफ फ्लैग ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी, इफ फ्लैग ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू, सेम ही बात है ना। तो यस चाहे सर, मैं ये, यस ये सर। लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही बात है। इफ फ्लैग कंसोल डॉट लॉग दे आर एनाग्राम्स, चला के देखें बस क्या रिजल्ट आता है। अभी तो ये है एनाग्राम्स, तो आइडियली इट शुड बी दे आर एनाग्राम्स। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं इसको थिंग्स कर देते हैं, नाइट थिंग की जगह। अभी दे शुड नॉट बी एनाग्राम्स, तो ये तो यहीं से आ जाएगा बिकॉज दोनों की लेंथ ही बदल गई। ठीक है, बट लेट्स से लेंथ सेम रखते हैं तो थिंग ही रखते हैं, कोई एक कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, एन का एम कर देते हैं, है ना। सो इट इज वर्किंग फाइन एंड एज एक्सपेक्टेड। समझ में आया। अभी एक काम करते हैं, मैं आपको ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके चैट में भेज रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक।
जिस भी लाइन पे आपको डाउट है आप लोग आपस में डिस्कस करिए एक बार, ठीक है? तो यू कैन आस्क द डाउट्स एंड अदर पीपल कैन आंसर द डाउट्स। क्या हुआ मनाश? Sir, can you share the screen? Yep. सर क्या हम एल्स में ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करके और उसके बाद मतलब सॉर्टिंग करके भी ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये चीज बोली हुई है कि एक ही प्रोग्राम को ना या एक ही किसी भी एक टास्क को करने के 1 करोड़ से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ देम। ओके ऑल्दो वो जो तरीका, खैर उसमें मैं बाद में आऊंगा जब मैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि वो तरीका मैंने क्यों नहीं अडॉप्ट किया है यहाँ पे। बट ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इट इज अ परफेक्टली वैलिड वे। ओके ठीक है, तो फोक्स गो थ्रू द प्रोग्राम। जिस भी लाइन पे आपको डाउट है प्लीज पिन पॉइंट दैट एंड आप लोग अपने डाउट्स चैट में लिखते जाइए, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। टेक 5-7 मिनट्स फॉर दिस। किया है, कैसे वो मैच कर पा रहे हैं वो? तो देखिए, सबसे पहले ऊपर के अगर आप दोनों फॉर लूप्स पे ध्यान दोगे, मतलब ऊपर वाले फॉर लूप पे अगर आप ध्यान दोगे, तो उसमें हमने क्या किया है कि S1 में कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है और S2 में कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली है हमने, है ना, काउंट 1 एंड काउंट 2 में। और इस वाले Yes. लूप में हम क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों ही लेटर्स की फ्रीक्वेंसी, दोनों मतलब किसी भी लेटर की फ्रीक्वेंसी या किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दोनों एरेज में सेम होनी चाहिए। अगर वो दोनों में सेम नहीं है, यानी कि लेट्स से STR1 में B आ गया 3 बार और STR2 में वो था 2 ही बार, या लेट्स से था ही नहीं, ठीक है, तो क्लियरली दे आर नॉट एनाग्राम्स। Okay. नहीं क्लियर हुआ? No sir. हाँ, तो ओके नहीं बोलना होता है ऐसे केस में, बताओ ना नहीं क्लियर हुआ, ठीक है? तो लास्ट का वो वर्ड्स का ही नहीं समझ में आ रहे, वो जो रिपीट हो रहे हैं मतलब। गिव मी अ सेक, ठीक है, आई विल शो यू। सो नाइट हैंड थिंग है, राइट? लेट मी टेक अ बिगर वर्ड, चले कोई नहीं, इट विल स्टिल काउंट 1 प्रिंट कराता हूँ एंड देन काउंट 2 प्रिंट कर। व्हाट डू वी हैव? वी हैव नाइट एंड थिंग व्हिच आर एनाग्राम्स। अब देखिए, काउंट 1 में मैंने क्या प्रिंट, अभी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी इससे। ओके, पूरे पूरे नहीं आ रहे हैं, ओके कूल। गिव मी अ सेक, एक एक करके प्रिंट कराता हूँ पहले। एक एक में आएगा, एक एक में भी वैसे वही प्रॉब्लम करेगा 156 में। हाँ नाइट, गिव मी अ सेकंड। अभी आप ये मत पूछना डॉट डॉट, मतलब सबको ही बोल रहा हूँ, पीपल फॉर प्लीज डोंट आस्क कि मैंने डॉट 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 क्या किया, और मैं आपको जब स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर बताऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप सिंपली समझिए मैंने काउंट 1 प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वो डाल देता हूँ हाइफन हाइफन, जिससे वो क्लियर है, इससे पता चल जाएगा। इसके बाद मैं काउंट 2 डाल रहा हूँ, काउंट 2। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, पहला वर्ड था नाइट और दूसरा वर्ड था थिंग। नाइट, नाइट का n है 110, तो देखिए यहाँ पे 110 जहां पे भी आएगा, मुझे नहीं याद है कि कहाँ पे आना चाहिए, मे बी ये है वो 110th इंडेक्स, यहाँ पे मैंने 1 किया, ठीक है? तो ऐसे ही सिमिलरली मैंने क्या किया, 0 to 255 सारी अक्रेंसेस ले ली, बिकॉज मैंने ये एज्यूम कर लिया कि अभी जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे इन दोनों स्ट्रिंग्स में, वो 0 से 255 के बीच में उनकी एस्काई वैल्यूज होंगी, ठीक है? अब वो जितनी बार भी अकर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट और थिंग में तो दोनों सारे वर्ड्स मुझे लग रहा है एक ही एक बार अकर कर रहे हैं। कोई ऐसा लेते हैं जिसमें 2 बार आते हो, लेट्स से BORE कर देते हैं इसको भी, और इसको भी डबल डी कर देते हैं, दे आर स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं बोर्ड एंड लेट्स से रॉब्ड, ठीक है? तो दे आर एनाग्राम। तो आप देखें यहाँ पे कि जो डी है, डी यहाँ पे अकर कर रहा है, इसकी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस लूप, कैर को डैट वाला जो लूप है, इसकी मदद से मैंने हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करा के इस एरे में स्टोर करा दी है ना? तो ये बोल्ड BO जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है, BORE बोल्ड, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये ROBEDD ये वाला उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है ये यहाँ पे स्टोर है। जैसे ये 0 वाला 0 बार ही आ रहा है, ठीक है? ये आपका है D,
तो डी 2 बार आ रहा है, पर सी देखिए 0 बार आ रहा है दोनों में, ठीक है। और फिर जब ये दोनों एरेज मेरे पूरे पूरे बन गए कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, जब ये फ्रीक्वेंसी एरेज पूरे पूरे बन गए, तो मैंने इस लूप में क्या किया है कि दोनों को कंपेयर कराया है कि हर एक इंडेक्स पे जो फ्रीक्वेंसी आई है वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे गलती से भी 1 रह गया, जैसे यहाँ पे ROBE कर दिया मैंने डबल डी की जगह, है ना, अगर मैंने डी कर दिया तो क्लियरली दे आर नॉट एनाग्राम्स, ये एनाग्राम हो ही नहीं सकते, राइट। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो सी, मैंने क्या किया, एक सेकंड दीजिएगा, काउंटिंग कहाँ गई, अच्छा वो लेंथ अलग हो गई ना, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लेट्स से मैं एक और वर्ड कोई डाल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे सी डाल देता हूँ ताकि लेंथ अलग ना हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे D2 है पर यहाँ पे D1 ही आ रहा है, राइट। तो क्लियरली लेंथ इक्वल है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सी है ही नहीं, पर यहाँ पे रॉब्ड के बाद मैंने एक सी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे सी था ही नहीं पर यहाँ पे सी आ गया, राइट। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज मैच हुई ही नहीं, और जब फ्रीक्वेंसीज मैच हुई ही नहीं तो क्या, तो हम वी कैन से राइट कि दे आर नॉट एनाग्राम्स, है ना। ओके सर, गॉट इट। पक्का इस बार? यस सर। ठीक है प्रियम, मेरा मन तो नहीं है पर ठीक है, बताइए क्या डाउट है आपको। सर आपसे ज्यादा ही दुखी हूँ थोड़ा मैं, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप तो होमवर्क करके आओगे। नहीं सर, मैं कर पाता सर। मैं कल पक्का कर लूंगा सर किसी की हेल्प से। चलिए सॉरी बताइए। फॉर दैट। और सर मेरा ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं क्लास छोड़ सकता हूँ हाँ सर हाँ अभी फॉर कुछ? श्योर, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर दैट, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थैंक यू सही सर। नहीं लग रहा है यू कैन ऑलवेज लीव द क्लास, उसके लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर। टेक केयर। ठीक है, तो ये रहा एनाग्राम्स, राइट। किसी और को कोई डाउट्स? ठीक है चलो, तो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू डू व्हिच इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि व्हाट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। एक एरे इस बार इनपुट है, ठीक है। तो एरे है एक इनपुट, ठीक है। तो टू इनपुट एन एरे, इनपुट तो अभी आपको नहीं लेना है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ द इनपुट आप कुछ भी एरे ले लेना एंड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम दैट एरे। आपको डुप्लीकेट्स रिमूव कर देने हैं उस एरे से, ठीक है। without using any other kind of data structure, without using any other kind of data structure, any other kind of data structure। एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इसमें आपका काम बहुत आसान कर देगा, पर उसका यूज नहीं करना है। कुछ लोगों को शायद पता हो इसलिए मैंने ये एडिशनल चीज डाल दी, वरना आप ये ज्यूम करिए कि इस टाइप का कुछ सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल var a इक्वल्स टू, लेट्स से द नेम ऑफ द array is arr, for arr इक्वल टू 1 3 5 3, लेट्स से यही array है। रिजल्ट शुड बी var, रिजल्ट शुड बी 1 3 एंड 5, ठीक है। ये रिजल्ट होना चाहिए। तो बेसिकली जो जो भी नंबर या जो कैरेक्टर या जो भी चीज रिपीट हो रही है वो आपको रिमूव कर देनी है। अब ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एरे में सिर्फ नंबर्स ही हो, एरे में स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आया रोम, फिर आया इटली, ठीक है, और फिर से आ गया अगर रोम, तो ये जो बाद वाला रोम है ना ये आपको रिमूव करना है, ठीक है। हो सकता है इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा भी कुछ नॉलेज लगे, इट इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है। बट आपको वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। So take 15 minutes for it and complete the program.
सर मेरा भी एक है। चलिए ठीक है फोक्स, तो बाकी लोगों के लिए होमवर्क है कल तक, ठीक है। प्रोग्राम इज स्लाइटली ट्रिकी, तो मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ आपको। मैं देखना चाह रहा था कितने लोग क्लास में ही कर लेंगे, 3-4 लोग कर पाए, ठीक है फाइन। we'll start with the next topic for now, which is objects. पाइथन में जिनको हम डिक्शनरी भी कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम है, बट इन जावास्क्रिप्ट वी कॉल देम एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट की वैल्यू पेयर्स। ऑब्जेक्ट्स आर की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स आर अ कलेक्शन ऑफ, ऑब्जेक्ट्स आर अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल वॉर, ये वैसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने आई वाज डिस्कसिंग टाइप्स इन, बट आज मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फॉर वॉर इक्वल टू ऑब्जेक्ट लेट्स से A1 कॉमा B, लेट्स से महेश, ठीक है, देन सी खुद में भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो द वैल्यू, सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज डिनोटेड बाय ब्रेसेस, ठीक है। ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स हैं और ब्रेसेस व्हिच यू कॉल देम। तो जरूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू ऐसे नंबर या स्ट्रिंग ही हो, ये खुद में भी एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल सी एंड देन वी हैव द प्रॉपर्टी लेट्स से कॉल्ड नेम, लेट्स से आई मीन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, राइट? तो यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट। व्हाई डू वी कॉल इट नेस्टेड ऑब्जेक्ट? नेस्टेड क्यों है? क्योंकि आप देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा है, ये दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, बिकॉज व्हाई इज दिस अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द केस ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सी एक एरे भी हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल कि द मार्क्स अचीव्ड बाय महेश, लेट्स से कुछ भी, मतलब मार्क्स हो गया, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, 20, लेट्स से 100 कुछ भी, 99, राइट? तो इट कैन बी एनीथिंग, बट द कीज विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग, ये ध्यान रखिएगा। द कीज यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो, दे विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस बिकम्स रोल नंबर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट, चलिए रोल नंबर ही ले लेते हैं, रोल, लेट्स सिंपली टेक इट रोल। ये क्या हो गया? दिस इज द नेम, लेट्स कीप दैट स्मॉल। देन ये हो गया मेरा मार्क्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ मार्क्स या मार्क्स, वट एवर यू वांट कॉल इट। तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स separated by commas, commas नहीं commas, right? तो ये हो गया। now the keys will always be, remember this thing, the keys will always be strings, whereas values can be any valid JavaScript type, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एन array, या जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये खुद में भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? जैसे मार्क्स हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट लाइक दिस, मान लीजिए ऐसे स्टोर होते हैं कि लेट्स से इन इंग्लिश हाउ मेनी मार्क्स ही हैज गॉट, है ना, लेट्स से लेट्स गिव हिम 100, एंड इन साइंस कितने आए, है ना, सिमिलरली। So it can be an object also, and this becomes a case of nested object, right? Now the question is how do we access these values? इन values को हम access कैसे कर सकते हैं? तो we can access these values using two ways. One is your dot notation and another is, एक आपका dot notation है और दूसरा होता है हमारा similar to arrays, right? तो array में हम कैसे करते थे? ARR 0 1 हम इंडेक्स देते थे, पर इन ऑब्जेक्ट्स देयर इज नो सच थिंग एज इंडेक्सिंग। ऑब्जेक्ट्स में इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट, रिमेंबर दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ। The first point is objects do not have indexes. Objects do not have indexes. Second point, यहाँ पे या फर्स्ट पॉइंट को हम डेफिनेशन ले लेते हैं। Second point is what are objects, and third point is which we will see कि objects can be accessed through two ways, can be accessed through either dot notation or using square brackets, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको इस ओबीजे का नेम निकालना है, इस ओबीजे नाम की चीज में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेम, तो हाउ विल आई डू दैट? console.log, फॉर एग्जांपल obj.name, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है, सो इट विल प्रिंट महेश। तो एक तो ये तरीका होता है यूजिंग द डॉट नोटेशन थिंग, ठीक है। डॉट नोटेशन की मदद से, एक सेकंड, लेट मी क्लियर द टर्मिनल, यूजिंग द डॉट नोटेशन थिंग
यू कैन एक्सेस, जैसे obj.name, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इंग्लिश के मार्क्स एक्सेस करने हैं, तो हाउ विल आई डू दैट? इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंग्लिश मार्क्स, व्हाट आई विल डू इज obj.marks.english। तो बस आपको डॉट लगाते लगाते आगे चलना है, तो obj.marks और मार्क्स के अंदर .english, ठीक है। सो यू विल गेट द रिजल्ट्स। दूसरा तरीका, ये तो हो गया एक तरीका, विच इज यूजिंग द डॉट नोटेशन। दूसरा तरीका क्या होता है? सेकेंड वे इज दिस, you can write here square bracket similar to arrays, but instead of directly typing like roll, ठीक है, वैसे ये भी कर सकते हो आप, but don't type this, you have to do it inside strings, ठीक है। तो देखिए अभी क्या, let's see if we get the result, yes, ठीक है, 1। similarly you can get name, महेश। अब मान लीजिए जैसे फिर से मान लीजिए साइंस के मार्क्स को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, obj मार्क्स का रिजल्ट क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, लेट मी शो यू, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी के आगे एकदम वैसे ही लगा करके आई डू दिस, है ना, आ रही है बात समझ में? तो हमें साइंस के मार्क्स भी मिल गए। सो दीज आर योर ऑब्जेक्ट्स, दीज आर प्राइमरली यूज्ड जब आपको इस तरह से मैपिंग करनी रहती है। क्या करनी रहती है? मैपिंग करनी रहती है, राइट। इतनी ये बात समझ में आई मेरी? विवेक, डाउट्स? Yes, sir. सर आपने ऊपर डेफिनेशन दिया था उसका हाँ एक जी, बार दिखा सकते हैं? हाँ ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट पे ही लिखा है। सर और z की जो वो देखने हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर पूरी डेफिनेशन नहीं दी गई है। अच्छा एक second। सर मुझे एक चीज और पूछने का था सर। पूछिए पूछिए। मैंने मतलब बहुत से डेवलपर तो कहते हुए सुना है कि दे से लाइक आई एम गोइंग टू कंप्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम द अरे और एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इट मींस, लाइक दे आर कंप्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द अरे और ऑब्जेक्ट, बहुत मींस सारे सेंस हो एक्सेसिंग द सकते हैं, वैल्यू। देर आर लाइक लॉट्स ऑफ सेंस टू इट, वो डिपेंड करता है वो बात किस सिचुएशन में कही गई। कई बार कंप्यूटिंग इज सिंपली जैसा आपने कहा एक्सेसिंग, कई बार कंप्यूटिंग इज मे बी कि इस, अभी हम आएंगे उस पे भी, यहाँ पे कोई फंक्शन है गेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम देयर, और अभी आप जब दिस कीवर्ड पढ़ेंगे तो उसमें कंप्यूटिंग की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो वो किस सेंस में कहा गया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? सर तो वैलिड लास्ट वाला देखा है सर हाँ डेफिनेशन, जी, क्या चीज मैं सुन नहीं पाया। वेरस के आगे सर। अच्छा अच्छा okay। सर हम एरे के मेथड मतलब जो एरे के मेथड है वो आगे देखने वाले हैं। क्या कह रहा है मैं समझ नहीं पाया। सर वो जो एरे के मेथड रहते हैं मतलब। एरे के मेथड्स मैं करवाऊंगा आपको कल या परसों में। ओके सर। ठीक है, तो सबने ये लिख लिया, इतना कर लिया, चलिए अब मैं आपको कुछ एक चीजें और करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर अभी आप, जैसे आपने, आपके सामने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैं एक एरे भी ले लेता हूँ साथ में। अगर मैं टाइप ऑफ करूंगा ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ करूंगा एरे, ठीक है, दोनों में रिजल्ट मिलेगा आपको सेम, ये भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही, राइट। क्वेश्चन आता है हाउ डू वी डिस्टिंक्ट, कैसे बताएंगे कि ये एरे था और ये ऑब्जेक्ट था, बिकॉज टाइप ऑफ इज नॉट हेल्पिंग। टाइप ऑफ में आप देखिए तो दोनों ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश, है ना। बहुत आसान काम होता है ये, बट स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता होता है, तो कंसीडर इट एज अ ट्रिक है और ट्रीट, है ना। तो कंसीडर इट लाइक दिस कि जो भी एरे होगा उस पे हमेशा लेंथ प्रॉपर्टी डिफाइन लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रिंट करूंगा, आपको मिला 3 बिकॉज देयर आर 3 वैल्यूज इनसाइड इट, बट अगर मैं obj डॉट लेंथ करूंगा तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड। ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं होती, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट अ लिस्ट, ऑब्जेक्ट लिस्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एक मैपिंग है फ्रॉम इट्स की टू इट्स वैल्यूज। ये सारी क्या है, ये कीज है। तो ऑब्जेक्ट एक मैपिंग है फ्रॉम की टू वैल्यूज, ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं है, राइट। वेर एज एरे की क्या होती है, एरे की लेंथ होती, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो कैसे पता लगाएंगे अगर एरे है या नहीं? तो अगर आपको चेक करना है कि, मान लीजिए ये चेक करना है, आपको अभी नहीं पता कि ओबीजे में ऑब्जेक्ट है या एरे है, आपको चेक करना है ओबीजे एरे है या नहीं, तो आप सिंपली करेंगे ओबीजे डॉट लेंथ, ठीक है। और क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो सिंपली अगर नंबर है तो 0 से बड़ा भी होगा। फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या हो गया, ओबीजे आपका एरे नहीं है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, है ना। जबकि अगर यही चीज मैं एरे पे करता हूँ,
result will come true, which will clearly give me कि array is मतलब ये ARR is an array, right? तो कभी भी आपको अगर ये चेक करना हो, टाइप ऑफ हेल्प नहीं करेगा. अगेन रिमेंबर दिस फैक्ट, टाइप ऑफ इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज टाइप ऑफ के लिए दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट ही है. तो इन दैट केस आप ये लेंथ पे चेक लगा सकते हो बिकॉज ओबीजे की लेंथ तो कभी डिफाइंड ही नहीं होती, राइट? या तो आप इस तरह से चेक लगा लो या फिर इस तरह से लगा लो कि डॉट लेंथ शुड नॉट बी इक्वल टू अनडिफाइंड. ये भी लगा सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी वैलिड, राइट? ये समझ में आया? इतनी बात समझ में आई मेरी. अब मान लीजिए आपको अगर ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे मार्क्स को डिलीट कर देना है, तो देखिए एकदम सिंपल है, आप यूज करेंगे डिलीट का, डिलीट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट और किस प्रॉपर्टी को डिलीट करना है. तो लेट्स से मुझे डिलीट करना है मार्क्स को, ठीक है? इसके बाद मैं लॉक कराऊंगा एंड लेट्स सी कि क्या वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, अब देखिए सिर्फ रोल नंबर और नेम बचा, मार्क्स नहीं आ रहा है, विच मीन्स मार्क्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम हियर. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज योर डिलीट फंक्शन. इसके अलावा नॉट फंक्शन बट ठीक है, कॉल इट फंक्शन. तो इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि कीज में अगर आपको पहली चीज तो सारे स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है? अगर आपको पर हाइफन इंक्लूड करना है, ठीक है, तो आपको आपकी की को भी स्ट्रिंग्स में लपेटना पड़ेगा, राइट? लाइक दिस, मतलब सिंगल कोट डबल कोट्स दैट डजंट मैटर. बट अगर मान लीजिए आपको इस तरह से यहाँ पे डालना है कि रोल 1 या रोल ए वट एवर इट इज, यानी अगर आपको बीच में हाइफन यूज करना है आपकी की में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको रैप करना पड़ेगा इन कोट्स, चाहे वो सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो. एक चीज ये हो गई. दूसरी चीज इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर एंड अगेन इट इज नॉट अ बैड प्रैक्टिस, बीच में हाइफन इंट्रोड्यूस करना बैड प्रैक्टिस नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? लोग करते हैं ऐसा, इट इज वेरी वैलिड. पर इसमें एक और चीज याद रखिएगा, अब आप रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? डॉट नोटेशन यू वोंट बी एबल टू यूज, ये हो जाएगा इनवैलिड. तो अगर आपका हाइफन आता है या इस तरह की कोई चीज है, तो यू कैन ओनली यूज योर स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, और उसके अंदर फिर जो आप कर रहे थे वो आप कर ही सकते हैं, राइट? इट विल वर्क. तो ये कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है, यू नीड टू रिमेंबर दीस थिंग्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स. सर एक बार लास्ट वाला दिखाए. हम्म. ओके सर. कोई डाउट सर किसी को यहाँ तक? ब्रैकेट बस यूज नहीं कर सकते आप, हाँ जी, ब्रैकेट बस यूज नहीं कर सकते क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही साहिल. सर, ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते डॉट के बाद. डॉट के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे आप बोल रहे हो डॉट लगा दे ब्रैकेट, दोनों की जरूरत क्या है? दोनों नहीं लगाए जाते हैं ऐसे जनरली. Yes, sir. या तो डॉट यूज करिए या स्क्वायर नोटेशन यूज करिए, Yes, sir. ठीक है? तो चलिए, ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अभी मैंने बताया नहीं. अच्छा, एक चीज जो एरे में मुझसे छूट गई थी वो ये थी कि एरे में मैंने आपको ये चीज तो बताई थी ऑलरेडी कि आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और मैंने बताया था यहाँ पे एप्पल भी आ सकता है, यानी मल्टीपल टाइप्स भी आ सकते हैं. पर क्या मैंने आपको बताया एरे के अंदर एरे भी आ सकता है, तो कोई भी वैलिड टाइप आ सकता है, राइट? तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ इस दूसरे एरे के अंदर, या ये एम्प्टी भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, राइट? कैन बी एनीथिंग. कितना भी कॉम्प्लेक्स या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. अब ये एरे के अंदर एरे है, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? इसके लिए व्हाट टर्म विल आई यूज? दिस इज एन एरे इनसाइड एन एरे. Maybe so nested array or could Nested anything. array. करेक्ट. सो दिस इज अ नेस्टेड एरे बिकॉज देयर इज एन एरे इनसाइड द एरे. और इसी से रिलेटेड है आपका अगला प्रोग्राम, ठीक है? व्हिच इज गिवन एन एरे लाइक दिस. एक एरे होगा जिसमें कुछ, एंड दिस एरे विल कंटेन ओनली नंबर्स एंड एरेज, यानी कुछ तो इस तरह से नंबर्स पड़े होंगे और कुछ पड़े होंगे इसके अंदर फर्दर एरेज, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 लेवल की नेस्टिंग हुई. सबसे पहले 1, 2, फिर अगली वैल्यू, फिर एक एरे 2, 5, 6, फिर 7, फिर एक एरे उसके अंदर 8, और इस एरे के अंदर फिर एक एरे 9. तो 3 लेवल की नेस्टेडनेस है यहाँ पे, ठीक है? आपका रिजल्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए. आपको इसे फ्लैटन कर देना है, मतलब 1, 2, फिर से 2, फिर 5, यानी सारे के सारे लेवल 1 पे आ जाना चाहिए. 7, 8 एंड 9. अभी ये जितने भी नेस्टेड है ना, इनको आपको उठा उठा के बाहर निकाल लेना है. इसमें यही आपका प्रोग्राम है. इसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग एन एरे, ठीक है? फ्लैटनिंग एन एरे. फ्लैटनिंग क्यों बोलते हैं मैं बाद में समझाऊंगा. तो फ्लैटनिंग एन एरे आपको करनी है यहाँ पे, यानी इसके अंदर नेस्टेड एरेज हो सकते हैं, आपको उन वैल्यूज को निकाल के बाहर लगाना है. एक ही हिंट दूंगा मैं, इसमें आपको नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और ये नेस्टेडनेस कितनी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा एक हुआ, फिर यहाँ पे एक आई मीन दिस इज लेवल 0, ये वाला एरे लेवल 0 पे है,
ये लेवल 1 हो गया, यहाँ पे लेवल 1 खत्म हो गया, ये फिर से लेवल 1 आया, और ये लेवल 1 के अंदर फिर लेवल 2 आ गया। तो इस तरह से कितनी भी लेवल हो सकती है, लेवल 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, आपको इसे फ्लैटन करना है। ठीक है, चलिए आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए मैं ये करता हूँ, अभी स्टार्टिंग है क्योंकि प्रोग्रामिंग की, कि आपकी जो नेस्टिंग है वो सिर्फ लेवल 1 तक होगी, लेवल 2 3 नहीं होगी। तो सिंपल आपको या तो नंबर मिलेंगे, है ना, या तो नंबर मिलेंगे या ऐसे एरे मिलेंगे जिसके अंदर नंबर हो, तो आपको सिर्फ एक ही नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए, ये प्रोग्राम करिए। अगला वाला जो इसका पार्ट है जिसके अंदर मैंने कहा मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टेडनेस है, वो या तो मैं कराऊंगा या आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, पर ये वाला अभी करिए, इसके लिए मैं 15 मिनट दे रहा हूँ आपको। फ्लैटन करना है आपको एरे, चैट में पेस्ट कर दे रहा हूँ। नहीं है, तो उस एरे को हटा के उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक लेवल ऊपर ले आना है। एक ही लूप लगेगा सर इसको? 2 लूप लगेंगे, नेस्टेड लूप जाएगा एक। नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है। इसकी चिंता मत करिए। ओके सर। किसका किसका हो गया, चलिए ये बताइए। सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप बंद हो गया मैंने। अच्छा, चलिए बाकी लोग इससे और होमवर्क, तो आज मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, कल ये होमवर्क में करके लाइएगा, यही 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। ठीक है, कल विल मीट विद फंक्शंस, टॉपिक ऑफ फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, गुड बाय। Excuse me, sir. गुड नाइट, बाय सर। सर हेलो हाँ जी, बताइए एक एक सर, करके। ये प्रॉब्लम को हम एक लाइन में कर नहीं सकते क्या? क्या वो मतलब प्रिंटिंग का? तरीके हैं, बट मैं भी चाहता हूँ आप लॉजिक पे फोकस करें। ओके सर। हम्म, हेलो सर। हाँ तुषार। सर मुझे जो आपने ये जो अभी पहला जो दिया था जिसमें सर वो जो डुप्लीकेट्स है उसको हटाना है, तो सर मैं डेटा स्ट्रक्चर का एक अप्रोच तो चेक कर रहा था, बट हाँ, उसके अलावा सर वो कोड जो है वो बहुत ही लंबा जा रहा था, तो मतलब मैं उसका अप्रोच कैसे रखूँ सर उसको सॉल्व करते वक्त? लंबा थोड़ा तो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा तो लंबा जाएगा। So मैं उसको बता देता हूँ तुझे को। हाँ जी, जी तुषार को एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो बाद में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो। बोला सर तुषार को बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने किया शॉर्ट वर्जन में। ठीक है, ठीक है, विदाउट शॉर्ट भी एक विदाउट तरीका है इनबिल्ट फंक्शन। अभी। हाँ, शॉर्ट भी एक तरीका है, बट द थिंग इज कि Yes. अभी इतना मैंने बताया, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से सोचोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो कोई नहीं, आप बता देना, डिस्कस आप लोग आपस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो सॉर्टिंग से हो जाता है सर, सॉर्टिंग से वो ज़्यादा सॉर्टिंग से हो डिफिकल्ट नहीं जाएगा, जाता। हो जाएगा ब्रो डेफिनेटली। कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना। ठीक है, तरीके बहुत से हैं, मैंने कहा था ना, मैंने अभी कोई पूछ रहा था तो मैंने उनको यही कहा कि एक प्रॉब्लम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर।